Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology or mythology, or however you pronounce it, which means science or study of fake, lie, or imagination. And mythology actually destroys your identity by telling you that whatever you know about your culture or history was never real. And there was no word opposing mythology. So I invented the term Satyology, which is built on the same etymological rules as mythology, because the word mythology or mythology comes from Sanskrit root word myth. In Devanagari, it is called ma, choti ki matra, and tha, myth. And the only antonym to myth in Sanskrit is sat. And to make it complete, I have to use the same etymological rules. It becomes satology. So science or study of truth. So never call your native history, even folklores, as mythology, because it has been handed down to your traditions. Sometimes it may not be verified, but then you have to search for verification of those stories. The Ramayana Mahabharata particularly mentions so many geographic proofs and coordinates. It cannot be mythology because there is astronomical proof, geographical proof, even archaeological proofs. Sometimes they may be hidden. Like, for example, in Valmiki Ramayana, it mentions people living under the earth. Now, huge cities have been found in Iraq, Iran, where thousands of people, 30,000 people, 40,000 people living under the surface of earth. Huge cities were made, and it has been already found. It was mentioned in Valmiki Ramayana in any case. I have a very special guest today, and he is well known all over the internet, very famous, very humble, and highly educated. So let us welcome Sri Amog Leela Prabhu. Hare Krishna, Aditya, thank you so much for inviting me. Really privileged to be part of this August assembly of wonderful people. Thank you so much. You have a wonderful backdrop, very beautiful backdrop. Where is this? So this is one of the places in Vrindavan. Beautiful, very beautiful backdrop. So from Vrindavan, we are listening in San Diego. It's amazing. Okay. So tell me one thing, like you have made this Sanatan Dharma very attractive to the youth. So what was the energy or what inspired you to make it so attractive to the youth in India? Actually, I would say that I have not made it attractive. It was already attractive, but it is a job of a teacher to present it as it is. That's it. So I just presented it as it is. So it appeared that I made it very jazzy, very glossy, very shiny, very effulgent, very illustrious. But actually, it is already of this nature. So what I have done, I have just presented it as it is. That's it. But of course, my examples are more contemporary. So that's why it appears that I have modernized Sanatana Dharma, but actually the examples are modern, but the principles, the ontology, the logics, the knowledge, the wisdom, it's already there. So that's why people give credit to me, but actually credit doesn't go to me. Just like somebody speaking on a mouse, on a speaker. So the one who is speaking, but actually it comes from the loudspeaker. So people will say, "Oh, loudspeaker is doing such a good job, is delivering knowledge to everyone." But actually, it's not the loudspeaker, but it's the person who is speaking on the mic. So similarly, Sanatan Dharma is already so much rich in knowledge, in wisdom, in divinity, in the vastness of knowledge, in the depth of knowledge. I'm just touching a glimpse of it. That's it. And then just giving it to the people, and people say, "Wow, you have made it so nice, so attractive." Well, I'm just a loudspeaker. That's it. The credit doesn't go to the loudspeaker, but to the speaker. So God is the speaker, his pure devotees are the speaker. And I'm just copy paste, control C, control V. Or those who are Apple users, command C, command V. That's it. That's what I'm doing. Nothing else. अभी आप मिले थे धीरेन्द्र शास्त्री को, आप मिले थे अभी हाँ जी, हाँ जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के साथ मिले थे हाँ आप। जी, यस। तो कभी ये बहुत सारे हिंदू लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू में यूनिटी नहीं है, हिंदू, हाँ जी, लेकिन आपने दिखाया यूनिटी है। हमारे हाँ, चैनल पर भी
इतने सारे चैनल से हम लोग जुड़ते हैं, जयपुर डायलॉग्स, इतने सारे चैनल्स हैं, सबके जो जी। संस्थापक हैं, दे ऑल्सो, इनफैक्ट जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित जी प्रमोटेड अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. ही वाज वन ऑफ द ओह वाह। फर्स्ट गेस्ट इन ऑन अच्छा। साइकोलॉजी. तो यूनिटी तो दिखती है हर जगह, मुझे तो हर जगह अच्छा। यूनिटी दिखती है, मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं कि यूनिटी नहीं है. बट व्हाई डू हिंदूज ऑलवेज से दैट देयर इज नो यूनिटी अमंग्स हिंदूज? अभी जैसे राइट्स भी हो रहे हैं, बोल रहे हैं कोई यूनिटी नहीं है. व्हाई डू हाँ व्हाट हाँ डू यू हाँ। थिंक? एक्चुअली ना वैसे तो यूनिटी रही है, लेकिन ना आप देखेंगे हमारे अंदर डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। डाइवर्सिटी लाइक देयर आर फॉलोअर्स हु आर अद्वैत, अद्वैत सिद्धांत के फॉलोअर्स भी हैं, भक्ति सिद्धांत के फॉलोअर्स भी हैं, कर्म मीमांसा के भी फॉलोअर्स हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर हैव बीन डिफरेंट फिलोसफर्स। उस तरह से रहा, और उनमें एक अच्छे डायलॉग्स रहे हैं, अच्छे डिस्कशंस रहे हैं, दैट इज देयर। सो इसलिए कभी कभी लगता है कि मे बी इनमें ना यूनिटी नहीं है। पर अगर आप देखें ट्रेडिशनली हिंदू कल्चर के अंदर, सनातन धर्म कल्चर के अंदर हेल्दी डायलॉग्स रहे हैं, जहां पर ये नॉलेज एक्सचेंज हुई है विद वेरी गुड एटीट्यूड। सो व्यक्ति ने भी अपने आप को दिखाया, बट आई नो, सामने वाले ने दिखाया व्हाट ही दिस पर्सन नोज, और एक अच्छा डिस्कशन हुआ। अगर हम उसको मॉडर्न में लेके आए तो हाँ, सनातन धर्म में ये चीज है कि दोज हु आर डिविएंट्स, वो भी कभी कभी क्या है, वो हिंदुइज्म के अम्ब्रेला के अंडर में काउंट हो जाते हैं, जिनका वैदिक नॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं है। उनके कोई बाबा जी, कोई फाउंडर आए थे और वो उनको कुछ पढ़ा गए, लाला जी लाला बना गए इनको। सो कभी कभी ऐसे लोग जब छतरी में आ जाते हैं सनातन धर्म की, तो ऐसे लोग कभी कभी थोड़ा सा हमें इन विद पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, नॉट द पर्सन। फिलोसफी, जो कि फिलोसफी नहीं है, फुलॉसफी है। तो देखने में लगता है यार में यूनिटी नहीं है यार, एक बंदा दूसरे की टांग खींच रहा है, ये तो ये ले लो जी, कर लो बात। सो कभी कभी हमारे अम्ब्रेला के अंदर कुछ ऐसे लोग जो आए हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा टांग प्यार से खींचते हैं, तो लगता है ऐसे यूनिटी नहीं है, बट एक्चुअली यूनिटी इज वेरी मच देयर। इसलिए आप देखिए कभी भी ना, यूजुअली कभी हिंदुइज्म में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है दूसरे को चढ़ गया, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इवन देयर आर शिवा डिवोटीज है, वैष्णवास, डिस्कशन हो जाएगा, हमारे शिव जी, हमारे कृष्ण भगवान जी, वो हो जाएगा, लेकिन डिशुम डिशुम नहीं होता हमारे यहाँ पर। सो लाइक देयर इज सेइंग दैट difference of opinion can be there, but difference in the hearts should not be there. So difference of opinion was there, and that's okay, that's fine. लेकिन हाँ, आज अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखें ना, सो कभी कभी हम देखते हैं हिंदू जो है यूनिटी क्यों नहीं एग्जिबिट कर पाता है, क्योंकि हिंदू ना थोड़ा सा डरपोक भी हो गया। वो खुश है अपने परिवार के साथ, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ठीक है, खाओ पियो यार, मस्त रहो, खाए का ये झगड़े पड़ना, उसको पीट रहे हैं ना, पीटे हैं। मैं तो खुश हूं अपने परिवार के साथ, माई फैमिली इज गुड, ये हैप्पी। सो इसीलिए जो है लगता है कि ना हिंदू में शायद एकता नहीं है, अंदर से जुड़े हुए हैं, जो हो रहा है अरे यार अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन इतना जिगरा भी हिंदू नहीं लेकर के आ पाता कहीं ना कहीं। सो इसीलिए एक तो ये चीज है, साथ साथ में ना कभी उसको अभी तक ना एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिला। उसको लगा हमने कुछ कर लिया ना, अगर चौड़े होकर के अगर किसी मदद कर दी, तो ये तो पिट ही रहा है, साथ में मैं भी पिट जाऊंगा, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए कोई सपोर्ट नहीं रहा, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसको नहीं रहा कि वो आगे जाके एकता को एग्जिबिट करे। इसलिए उस डर के मारे भी कभी कभी हिंदू जो है वो पीछे रहते, तो लगता है फिर यार एकता है ही नहीं इनके अंदर। सो लेकिन आज हम देखते हैं टुडे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, होल वर्ल्ड इज नाउ ग्रेजुअली कमिंग टू सनातन धर्म, धीरे धीरे करके आ रहे हैं मैन। हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी, हु इज डूइंग फैबुलस लीडरशिप, ही इज लीडिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ धर्म ब्यूटिफुली। तो इसलिए भी कई करेजियस लोग अब आए, कहता है अरे हमें सपोर्ट है रे, अरे चलो रे, एकता दिखाएं। तो फिर आज एकता दिखाने के कुछ स्टेप्स आज नजर आते हैं हमें। इसलिए कहीं ना कहीं और हिंदू के अंदर क्या है ना, वो थोड़ा बुझा बुझा था, पर सोशल मीडिया ने सबको जला जगा भी दिया। हाँ यार जगो, ए जगो भाई, ए तुम भी जगो रे। तो इस तरह से अब जगना शुरू किया है हिंदू ने, और जगह है तो भाई बढ़िया जग रहा है, एकदम देख करके अच्छा लग रहा है, हाँ फाइनली। फाइनली. सो नाउ गुड थिंग्स आर हैपनिंग ग्रेजुअली। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, बिकॉज आफ्टर नरेंद्र मोदी इवन आई सी एनआरआईज ऑल्सो, जो हम्म। एनआरआईज हैं, और उनमें भी काफी विश्वास जगा है बहुत सारे एनआरआईज में. और इवन जैसे इस्कॉन जैसी संस्थाओं में जहाँ पे पॉलिटिक्स को बाहर रखते हैं, वहां पर भी हम्म। लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह होना Yeah. है. लेकिन अगर हम रामायण महाभारत को देखें, तो दशरथ महाराज ने जो ट्रेनिंग दी भगवान राम को, जबकि भगवान राम को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम्म। ट्रेनिंग दी राज करने की, किस तरह लोकप्रिय हो, वो भी ट्रेनिंग दी गई थी. यस यस। और पांचों पांडवों को जो कुंती महारानी ने ट्रेनिंग दी कि पांचों पांडव वर इक्वली केपेबल
मतलब पांडु महाराज ने ट्रेनिंग दी उनको कि वो पांचों पांडव वर इक्वली कैपेबल टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर धर्म। वो यस यस। शिवालरी एक उनके अंदर भर दी गई। लेकिन आज ये हम माता पिता में ये कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं देख रहे हैं कि अपने बच्चों को कुछ समर्पित किया जाए कहीं पे, है ना, कहीं पे हाँ। उनको डेडिकेट किया जाए कि ये अपने धर्म पे मार्ग पे चले। तो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर, क्योंकि बिना मदर के कुछ हो नहीं सकता, बिना माँ के कुछ हम्म। हो नहीं सकता। आपके तो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने अपनी माँ को इतना ग्लोरीफाई किया है। या उनके साथ बैठे हैं, वीडियोस में गए हैं आप, उनके साथ दिखा रहे हैं अपने जीवन को, अपने यू हैव टेकन अ डे इन अ लाइफ ऑफ अमोघ लीला ऑल्सो, एक वीडियो भी है आपका। हाँ। So that is a, so it also goes credit to those mothers and parents also. So what do you want to tell to those mothers and fathers who want to, who dream of, who praise Modi ji and other people, but Mahabharat takes you even beyond. People can become even more stronger than Modi also, यस यस। and can become really transformational. So what do you say to those parents? एक्चुअली ना आज आप देखें पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग लोग सीखते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। People learn parenting like that, gradually they keep trying and they learn by mistake. Oh, ऐसा नहीं करना चाहिए था. Oh, अरे नहीं, हाँ ये अच्छा हो गया. In this way, gradually in a due course of time, they learn parenting, which is a science. It's a beautiful art and it's a wonderful science in itself. ये कोई सिखाता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सिखाता ही नहीं तो उनको पता ही नहीं है पेरेंट्स को एक्चुअली करना क्या है। तो उनको लगता है मे बी इनको फैसिलिटीज दे दो और इनको अच्छी एजुकेशन दे दो और इनकी शादी करा दो, बच्चे करा लो, या दैट्स इट। हो गया भाई, ओके बच्चा हमारा सेटल्ड है जी, नाउ ही इज मैरिड, शी इज मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, जॉब, सैलरी, सेविंग्स, लैम्बोर्गिनी कार, आवर पेरेंटिंग डन। सो दिस इज व्हाट दे थिंक। पर एक्चुअली ये पेरेंटिंग अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो कहीं ना पेरेंटिंग एक्चुअली होती क्या है, वो चीज कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, होनी चाहिए। जबकि proper courses, chapter 1, chapter 2, chapter 3, the do's and don'ts in parenting, the job of a father, the job of the mother, what they are supposed to do. So ये पता ही नहीं होता है एक्चुअली, इसीलिए अपने बच्चों को लोग एनकरेज नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। स्पेशली अगर आप हिंदू पेरेंट्स को अगर आप देखेंगे ना, वो वैल्यूज के और इतना फोकस करते ही नहीं। थोड़ा बहुत कर लेंगे, सच बोलो बेटा, झूठ मत बोलो, little bit here and there, but primary focus is career, 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 money making, money making, money making, skill acquiring, skill acquiring, skill acquiring, that's it. So parents अब सिर्फ इसी चीज को लेके कंसर्न रहते हैं, no other concern is there in terms of overall development of the child. तो फिर वो इतना एनकरेज करते भी नहीं, उनको लगता है बस बच्चा हमारा सेटल हो जाए, दैट्स इट। आप देखिए दूसरे धर्मों में लोग है ना, इवन बच्चा मैकेनिक बन जाए, वो टायर ठीक कर रहा है, पंचर लगा रहा है, कहता है बस अपने दीन को लेकर के, अपने ईमान को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के। सो इसीलिए ये लोग अपना वो कर भी लेंगे, दूसरे धर्म की लड़की को शादी करके अपने मजहब में लेकर के आना, वो सब कर लेते हैं। ये कहता भाई हमें करियर का कुछ नहीं है जी, दीन ही सब कुछ होता है। पर ये वैल्यू सिस्टम वो अपने फैमिली से लेकर के आते हैं। तो ये एक हिंदू को भी सीखना चाहिए कि हाँ थोड़ा तुम भी थोड़ा दीन, थोड़ा धर्म के बारे में कुछ एजुकेट कर लो बच्चों को। उनको डर लगता है फिर ये साधु हो गया तो इफ ही बिकम्स अ सेंट देन विल लीव अस, वी वुड बी ऑल अलोन। सो डोंट गिव सच स्पिरिचुअल वैल्यूज टू चिल्ड्रन। तो उसके बाद होता क्या है, हम वैल्यूज हमने दी, नाउ सिंस वैल्यूज आर नॉट बीइंग गिवन, यही बच्चे इन माता पिता को फिर वृद्धाश्रम भेजते हैं। We need some privacy to enjoy, and these oldies, when they are at home, they can't enjoy, we need some privacy, right senorita, love you darling? And then parents are sent to old age home, same parents who did not give value to the child कि साधु हो गया तो if he becomes a saint then। सो इसने ये रॉन्ग वैल्यू सिस्टम ऑफ द पेरेंट्स, यही इसका रूट कॉज है। कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है इसकी, है ही नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम। कहते हैं तो सीख लेंगे अपने आप, और क्या नहीं तो। सो इसकी वजह से आज हम देखते हैं एनकरेज नहीं करते बच्चों, जैसे माता कुंती यूज्ड टू डू। सो समवेयर दैट हैज टू कम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज वेल। आपने एजुकेशन की बात करी, हम लोगों ने, यूर वेरी एक्यूरेटली सेड इट, हम लोगों ने एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया है स्कूल्स को। हाँ यस और एजुकेशन जो है एक्चुअली घर पे होती है, यू नो। यस इन लाइक आई वाज, एक अमेरिकन कपल है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, लेकिन जी। देयर चिल्ड्रन बिकेम द रैबिड अपोजर्स टू हिंदूज, और पूरा ओ सांस्कृतिक एजुकेशन दिया अमेरिका में उनको। और उनकी अच्छा। दोनों दोनों बेटियां, दे टेस्टिफाइड अगेंस्ट हिंदूज इन द यूएस, कैलिफोर्निया।
तो अच्छा। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर दिया हमने, और हर जगह क्रिश्चियनिज्म वैल्यूज, अब्राहमिज्म वैल्यूज, वो हम्म। वैल्यूज उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे पास वो भी है और सब कुछ भी है। या और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, अगर जैसे भगवान कृष्ण भी है, अपने माता पिता की कितना सेवा करते हैं, एट द सेम यस। टाइम वही भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि हम्म। उनसे इतना ज्यादा जो अपने सिर्फ परिवार के बारे में सोचता है, बोलते हैं कि ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए फैमिली से, बोलते हैं वही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, दोनों साइड दिखा भी रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ और है एंड फिलोसॉफिकल स्टैंड भी कुछ और है, दोनों आर बोथ आर वैलिड, एज ए मदर एंड फादर, मदर इज द फर्स्ट गुरु। तो ये जो कॉन्सेप्ट को जो मिक्सिंग ऑफ एजुकेशन हो गया है अमेरिकन वो टेक्स्ट बुक्स में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, कि फैमिली फर्स्ट। या दैट्स ट्रू। जबकि ये बात भूल जाते हैं कि एज ए सोल यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी ऑल्सो, कि यस दैट्स बिकॉज अदरवाइज कहाँ प्रगति कैसे होगी। सो ट्रू। what do you say the this mixing of education where the Sanatan values and the Abrahamic values actually cannot coexist, but we यस see यस। that this mixing of education is creating confused children also. What do you have to या say? एक्चुअली चिल्ड्रन जो होते हैं ना, चिल्ड्रन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा दैट दे हैव गॉट बिगर आईज एंड स्मॉलर ईयर्स। यानी बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं, कान छोटे होते हैं। दैट मीन्स दे लर्न मोर बाय सीइंग एंड लेस बाय हियरिंग। हियरिंग कम्स लेटर, फर्स्ट दे सी। सो अगर पेरेंट्स इफ दे बिकम वेरी गुड रोल मॉडल्स एट होम, सो भले ही बाहर कोई उनको कुछ ही पढ़ा है, बट व्हेन दे सी हैप्पी पेरेंट्स, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड कन्विंसिंग आर्गुमेंट। ये खुश है यार, ये माता पिता मेरे खुश है यार, हमारा जीवन देखो एकदम फूका हुआ जीवन है हम लोगों का, बट दे आर हैप्पी। बट पेरेंट्स व्हेन दे क्वारल अमंग ईच अदर ना, तो होता क्या है फिर उनकी फिलोसफी बच्चे तो सुनते नहीं, कहते सुने हमने देख लिया, हाँ लड़ रहे होते हो आप, वी हैव सीन यू, लीव इट। So that's why they don't follow their parents. So somewhere they are to become role models. The parents are to become role models. That's very important. Then they would listen also. क्योंकि आंखों से देखा ना, लगा अच्छा एग्जाम्पल है यार, they are happy. So we can also be happy. How? Then they would listen. So father, I've got a question. Mother, I've got a question. Then they would do action. तो तब मिक्सिंग नहीं होगी, बिकॉज एक अच्छे एग्जाम्पल का होना बहुत जरूरी है। साथ ही ना सनातन धर्म को हमने इतने बोरिंग तरीके से लेकर के आए हैं, यानी कि पेरेंट्स आप देखो ज्यादातर ना रिचुअल्स बताएंगे, घंटी बजाओ, ऐसे करो, दिस दिस दैट दैट, बट व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? व्हाई आई शुड डू व्हाट आई एम डूइंग, बट व्हाई? हाउ बता देंगे, बट व्हाई? ये व्हाई नहीं बताते, करो, डोंट आस्क क्वेश्चंस, नॉनसेंस। हाँ, तो बच्चा जब कहता रिचुअली कर रहा है ना, तो इसलिए कोई आके अब्राहमिक रिलीजन का आके उसको बताएगा, अबे क्या तो वो देख। Now, since there is no reasoning, logical explanations of the phenomena, इससे कोई भी आके कन्विंस कर लेता है हमें, कहता है अरे तुम्हारे वो राम जी ना, you think Ram is God, his wife got abducted. How can a person who could not even protect his own wife can be God? You have any answer? You have any answer? हमारा हिंदू बच्चा, नो आंसर। अब ये इसके अंदर अब्राहमिक नॉलेज डालेगा, तो कहीं ना कहीं हमने उसको हमारे सिद्धांत को, फिलोसफी को इतना उसके अंदर ठूसा ही नहीं, उसके अंदर इतना डाला ही नहीं कि और कुछ आने का चांस ही नहीं है भाई, बंदा अपन सर हम फुल, हाँ हम फुल, ये करना पड़ेगा एक्चुअली हमको। फिर कुछ भी आगे ना ये जो अब्राहमिक कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगी, बिकॉज ये अब्राहमिक रिलीजन जितने भी है ना, दे आर वेरी जेनेरिक, दे आर मोर ऑन मॉरलिस्टिक प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल कंटेंट तो ना के बराबर, इवन सोल की क्वालिटीज नहीं है उसके अंदर डिस्क्राइब प्रॉपरली। री इनकारनेशन, मतलब दैट्स सच अ बेसिक कॉन्सेप्ट, वो री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। अरे हेवन हेल सर, इसके अलावा 14 प्लैनेटरी सिस्टम और कुछ? 14? वी हैव ओनली 2, एक हेवन और एक हेल, दैट्स इट। सर बीच में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये पता है? अब ये पता ही नहीं है रे। सो अब्राहमिक रिलीजन्स तो इतने जेनेरिक हैं और मॉरलिस्टिक है, which is good, but not transcendental. Sanatan Dharma gives detailed account of transcendental knowledge and complete knowledge. I was listening to one Christian missionary. I was in Goa. So उसने मेरे को दूर से देख लिया कि ना ये हरे कृष्णा वाला खड़ा हुआ है, तो टॉन्ट मारने के लिए उसने बोला मेरे को कुछ, कहता anything and everything apart from Jesus Christ is coming from devil, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. अब उसने हालांकि मेरी निंदा की, ही क्रिटिसाइज मी ना, हरे कृष्णा वाले
anyone and everyone apart from Jesus Christ coming from devil. ये हरे कृष्णा वाले भी they are coming from devil. पर उसने बाद में तारीफ भी कर दी, हालांकि क्रिटिसाइज कर रहा है, but he also appreciated in a way. He said, although they have all the answers to all the questions on the planet. Why? Because Sanatana Dharma, it talks about mundane and transmundane, both knowledge in complete fashion. It's there with Sanatana Dharma. So इसलिए सनातन धर्म इज कंप्लीट, लेकिन हम क्योंकि बताते ही नहीं है, तो कोई भी आके अब्राहमिक वाला आकर के उसको ओले ओले करके कंफ्यूज करके चला जाता है वो. तो इसलिए समवेयर वी आर टू डू दिस. जैसे वो बोले भाई तुम्हारे कृष्ण भगवान तो मर लिए थे, वो उनको तीर लगा पाऊं मैं, तो वो खुद ही मर गए जब तीर खा करके, तो भाई तो कैसे भगवान हो सकते हो. तुम्हारा भक्त बच्चा बोलेगा ओले ओले, अरे मेरे भाई इसको सिखाना था हमें कि सर तीर खा के कैसे मर जाएंगे. वो खुद जो परीक्षित महाराज की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं, तो जिसमें ब्रह्मास्त्र का असर नहीं हो रहा वो तीर खा के मर जाएगा रे. अरे जो पूतना के विष से नहीं मर रहा वो तीर खा के मर जाएगा रे. जो बाणासुर शिव जी को लेकर गया अपने साथ, जिसने बाणासुर को भी हराया हो, शिव जी को भी हराया, वो भगवान श्री कृष्ण तीर खा के मर जाएंगे. अरे बाग अरे बांगड़ू कैसे कैसे रे. सो इसीलिए कृष्णा कैन नॉट डाई ऑफ कोर्स. तो ये लेकिन समझाएगा कौन? ये पेरेंट्स समझाएंगे ना. ये पेरेंट्स समझाते ही नहीं है, तो कोई भी आके उनको ओले ओले करके कन्वर्ट करके ले जाता है ब्राह्मण रिलीजन के अंदर. सो कहीं ना कहीं हम एजुकेट नहीं कर रहे, इसलिए लोग शिकार हो रहे हैं, और कुछ नहीं. हम लोगों ने कभी कभी ऐसा भी लगता है मुझे, इतिहास हम लोग पढ़ाते नहीं है. जैसे अगर हम पांचों भाइयों को देखें, पांडवों पांचों भाइयों को देखें, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं. जैसे पांडु महाराज ने जो कुंती महारानी को पूछा कौन सा वरदान किस देवता को बुलाया जाए, और सभी का एक क्वालिटी. तो सबसे शक्तिशाली उन्होंने चुना वो था वायुदेव, क्योंकि वायु सबसे शक्तिशाली फोर्स है पृथ्वी पे. तो भी उसके भीम, उनके भीम आए. और सबका युद्ध का शैली भी अलग है, सबका कार्य करने का शैली अलग है. और लेकिन जब वैशंपायन उनको बताते हैं कि पांचों पांडव महायोद्धा हैं, कि हर कोई भी, हर किसी में इतनी शक्ति है कि वो महाभारत का युद्ध जीत सके, सिर्फ अर्जुन ही नहीं. लेकिन ये कुंती महारानी के शब्द हैं, वैशंपायन के शब्द हैं. लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं लॉलीपॉप दे के, छोटी छोटी बातों पे बहला के फुसला के, टू अवॉइड देम, टू मेक देम नॉट आस्क क्वेश्चंस, दैट दे डोंट आस्क क्वेश्चन. क्योंकि अगर बच्चे को आप खुला छोड़ देंगे एंड गिव हिम फ्रीडम, then the child will, स्वधर्म के अनुसार he will become a very big leader also. We all want कि हमारे बच्चे लोग नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर हो, शक्तिशाली हो. लेकिन somewhere we are to be blamed कि हम लोग भी अपने बच्चों को इतना फ्रीडम नहीं देते उनके. वी डोंट रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअलिटी. लेकिन अगर हम अब्राहमिक कल्चर में देखें, यहाँ पे द फिलॉसफी मेक्स द पर्सन डम्ब ऑल्सो. अब्राहमिक कल्चर में तो मैं तो यहाँ बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, तो बेचारों को वीडियो गेम से बाहर ही नहीं निकल पाते, बिकॉज पेरेंट्स वांट टू अवॉइड देम. तो जो भी सीखते हैं वीडियो गेम से सीखते हैं, एंड दैट इज एक्सट्रीमली वायलेंट. लेकिन भारत में भी वो कल्चर अभी मैं देखता हूँ हर जगह. बॉम्बे में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, जो एलीट क्लास है जिसको अमेरिकन छोड़ना चाहते हैं उसको इंडियंस अडॉप्ट कर रहे हैं. तो ये जो मिक्सिंग ऑफ द वैल्यूज है, आपने इस पे ऑलरेडी आंसर किया हुआ है कि मिक्सिंग ऑफ द वैल्यूज की वजह से कंफ्यूज भारतीय बाहर आ रहा है, जो कि जिसको अपने कल्चर के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है, अपने इतिहास के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है. लेकिन वो जब महाराणा प्रताप को देखता है और ये जो बड़े बड़े शिवाजी महाराज को देखता है, तो उसे याद आता है कि देखो इन्होंने क्या क्या किया. बाजीराव पेशवा को देखता है, लेकिन फिर भी वो ही कैन नॉट एक्ट, क्योंकि उसके पास इतना सोर्सेज नहीं है. शिवाजी महाराज की माँ ने उनको रामायण महाभारत गीता सिखाई और उनको एक फियरलेस बनाया, तो उन्होंने कैसे युद्ध किए, अपने तरीके के युद्ध किए. शिवाजी महाराज ने नया स्टाइल बनाया गुरिल्ला वॉरफेयर का. तो वेयर डू यू सी द फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म एजुकेशन? ओके, अब जो जो लेटेस्ट मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ना, वो है दैट सम ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडीज दे आर नाउ हैविंग गुरुकुल्स. अभी इस्कॉन के देखे ना, इस्कॉन के इंडिया में बता रहा हूं मैं, कई डिवोटीज ने गुरुकुल्स शुरू किए एक्चुअली. और ये गुरुकुल जो है, कुछ जैसे ब्रह्मचारीज हैं विद सम ऑफ द गृहस्थास, उन्होंने ना गुरुकुल शुरू किया. अब गुरुकुल के अंदर जो सारा सिलेबस है, इट इज नाउ रीडिजाइन. ये सिर्फ स्किल बेस्ड नहीं है, वैल्यू बेस्ड है. और सिर्फ वैल्यू बेस्ड ही नहीं है, साथ साथ में हाउ टू डील विद कलियुगा सिचुएशन. ऐसे नहीं बच्चा जो है वैदिक नॉलेज लिया, वो यहाँ पर आया, ही फील्स लाइक ओ आई एम, मैं तो एलियन हूं यहाँ पर. सो नहीं, हाउ टू टेक केयर ऑफ द कलियुगा सिचुएशंस एज वेल. सो इसके लिए भी ट्रेनिंग है. सो कई ऐसे गुरुकुल्स मैं जानता हूं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर हैविंग नाउ. और मुझको लगता है आने वाले समय में जो गुरुकुल्स है ना,
दे वुड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दी होल एजुकेशन। और आजकल लोग पसंद कर रहे हैं इन गुरुकुल्स को, क्यों लोग बताया, हमने देख लिया स्कूल कॉलेज में बच्चे दारू पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बहनी गालियां बक रहे हैं वो, और लड़कियों को, गर्ल्स दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, दैट्स इट। सो देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर अपोजिट जेंडर। तो ये सब स्कूलों में चल रहा है actually। बस टीचर्स डे के दिन बच्चे दारू वारू पी रहे हैं, टीचर उनके साथ पी रही है, या गुड या चीयर्स चीयर्स, ये हो रहा है स्कूल के अंदर। सो इसलिए कई पेरेंट्स ने कहा यार हमारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा भाई, सो लेट्स डू होम स्कूलिंग कराते हैं उनको, और फिर कहीं ना कहीं किसी गुरुकुल में उसको भेजते हैं फॉर लर्निंग फॉर मोर वैल्यूज। ट्यूशन कराते हैं, मैथ्स और फिजिक्स वगैरह की ट्यूशन वगैरह कराए थे, लाइक दैट। तो कुछ लोग ये होम स्कूलिंग वाले में भी आ रहे हैं, ऑल्दो इट इज वेरी टैक्सिंग फॉर द पेरेंट्स, बट यस दे आर डूइंग दैट। तो कहीं ऐसे गुरुकुल भी आ रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च कि पहले गुरुकुल में क्या क्या करिकुलम हुआ करता था। सो वो सब भी डिस्कस हो रहा है, और साथ ही मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी थोड़ा टच में रहे व्यक्ति। सो इसलिए जो गुरुकुल्स का आना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैंने देखा है कहीं ना करिकुलम के अंदर भी, इवन जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके अंदर भी ऐसे सेक्शंस डाले जा रहे हैं वे आर सच ग्रेट लीडर्स, लाइक एज यू कोटेड द एग्जांपल ऑफ शिवाजी महाराज। सो ऐसे एग्जाम्पल्स का आना, उनकी लाइफस्टाइल को देखना, उनकी आइडियोलॉजीज को देखना, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, वी गेट सो मच इंस्पिरेशन। सो इसलिए इस तरह से अब ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, और जो मॉडर्न एजुकेशन है ना उसमें लोगों का विश्वास कम होना शुरू हो गया है। ये दिखती बहुत अच्छी है क्योंकि ना कॉन्वेंट स्कूल है, बिग बिल्डिंग, नाइस बेंचेस, नाइसली बाउंड बुक्स एंड ऑल दैट, वाह, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, मिनी स्कर्ट वाली ड्रेसेस, मॉडर्न। पर बच्चे हो गए रहे हैं सत्यानाशी, सो दे आर सीइंग दिस। तो इसीलिए एक कॉन्शियसनेस में ना एक शिफ्ट आना शुरू हो गया है, और ऐसे सेटअप्स आने शुरू हो गए हैं विद इन इस्कॉन ऑल्सो। मैंने देखा है आउटसाइड इस्कॉन एज वेल, ऐसे कई डिवोटीज हैं, ऐसे लोग हैं हु आर फाउंडिंग नाउ गुरुकुल्स एट वेरियस लेवल, स्मॉल लेवल, बड़े लेवल। लाइक आई मैंने देखा बाल गोविंद प्रभु नाम की डिवोटी है पुणे में, उन्होंने करीब 30-40 बच्चों के साथ एक गुरुकुल शुरू किया हुआ है, आउटस्कर्ट्स में है, फुल ऑफ नेचर, और वहां पर उनको सिखाते हैं। इस तरह से एक दास गदाधर प्रभु करके भी हैं, सो ही हैज आल्सो स्टार्टेड वन गुरुकुल। इस तरह से ना कुछ डिवोटीज गुरुकुल छोटे बड़े लेवल पे कर रहे हैं। सो ये फ्यूचर है एक्चुअली। तो पहले गुरुकुल से इनको डिफ्यूज किया गया आउट विद कॉन्स्पिरेसी, कि हुआ क्या, उनका एक तो फाइनेंशियल सोर्सेस को कम कर दिया, जो वहां से पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, और गुरु जी को बदनाम कर दिया, कि जाके बोल दे गुरु जी को सीटी मारे, उसने बोल दिया गुरु जी बदनाम हो गया था जी, गुरु जी बदनाम हो गया, चलो जी बंद कर दो गुरुकुल, हो गया जी काम। तो इस तरह से विद प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी, गुरुकुल गॉट क्लोज। और अच्छा फिर व्हाट्स द ऑप्शन, ये हमारे कॉन्वेंट स्कूल से अगर पास आउट होंगे ना तो आपको नौकरी मिलेगी। ओ, इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से सारा वैल्यू शिफ्ट हो गया अलग लेवल पे। बट यस नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक ग्रेजुअली, इट मे टेक सम टाइम बट इट विल कम। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट पे टच किया कि हमारे गुरुओं को और एंटी ब्राह्मण प्रोग्राम जो कि मैक्स म्यूर ने शुरू किया था, दैट इफ यू या डिस्ट्रॉय द ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणों को जब बर्बाद करेंगे तो आप भारतीय समाज पे काबू पा सकते हैं। ये कैंपेन अभी भी चल रहा है। या मतलब ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं उन सबको बोल चुका हूँ, 1000 times आई हैव सेड, व्यासदेव तो सिर्फ एक ही थे, बाकी सब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए सभी लोग जब व्यास हाँ, गद्दी पे बैठते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बोल दिया गया है व्योपदेव, व्यासदेव अनेक हो चुके हैं। तो मतलब कोई रिस्पेक्ट को उसको मतलब अगर उस कनेक्शन को तोड़ देना, तो ब्राह्मण टाइप का जो हाँ, जो क्वालिटीज है, 9 क्वालिटीज लिखी हैं भगवत गीता में। अच्छा, भगवत गीता बड़ी साइंटिफिक बुक है, आप तो मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। 9 क्वालिटीज ब्राह्मणों की, 7 क्वालिटी क्षत्रिय की, 3 वैश्य की, एक शूद्र की। और इसमें कोई भी एक बड़ा नहीं है, मतलब अल्फाबेट में ABCD में पूछेंगे कौन बड़ा है, चारों की जरूरत पड़ेगा आपको, विदाउट दैट चलने वाला नहीं है काम। तो जो वर्ण और जाति को इक्वेट किया, वर्ण और कास्ट, जबकि कास्ट का भारत से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो अमेरिकन यूरोपियन या शब्द है। यूरोप में यस 2 कास्ट होती है, मेक्सिको में 7 कास्ट होती है, अमेरिका में 3 कास्ट होती है। तो इसे इसे वेरी गलत गलत बताया गया। और हमारा जो टीवी मीडिया है वो तो सब मूर्ख लोग ही बैठे हुए हैं ज्यादातर, और वो तो एब्सोल्युटली पैरट ऑफ द किसी एक वेस्टर्न एजेंसी के पपेट्स हैं, किसी ना किसी के। तो आई कैन यस यहाँ से मैं बता सकता हूँ कौन CIA के लिए काम कर रहा है, कौन KGB के लिए काम कर रहा है, वी कैन से। ओह तो द पॉइंट इज कि इट इज सो इन्फिल्ट्रेटेड सिस्टम कि गुरु ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट भारतीय बात करते हैं, जबकि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। आपके अनुसार, हमारे अनुसार, शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है।
नारद मुनि भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जबकि वर्णाश्रम में अगर जन्म के अनुसार देखा जाए तो उनका कोई स्थिति है ही नहीं कहीं पर भी। तो सो टेल मी वन थिंग कि ये जो करप्शन, एंटी ब्राह्मणिकल जो प्रोग्राम्स हैं जो कि वेस्ट के गाइडेड हैं ताकि भारत में बुद्धिजीवी बने ना, मैं साधारण से उदाहरण देता हूँ। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, मेजोरिटी ऑफ देम दे प्रैक्टिस डीप स्पिरिचुअलिटी एट होम, मंत्र जप, इतने सारे साइंटिस्ट हैं। और जबकि मार्स मूवमेंट और चंद्रयान तो सारा महिलाओं के द्वारा ही लेड है, एकमात्र प्रोग्राम इन द वर्ल्ड विच इज लेड बाय वुमेन। तो टेल मी कि दिस कैंपेन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणों के विरुद्ध विरुद्ध जो कैंपेन है, इसका बेसिस शास्त्रों में तो कहीं है नहीं, लेकिन यस दिस कॉन्स्पिरेसी हैज वीकेंड हिंदू सोसाइटी एंड हाउ? यस एक्चुअली इसका मैं अगर ओरिजिन देखूं ना, इसका ओरिजिन इज इन श्रृंगी, क्योंकि भागवत में आता है श्रृंगी बीइंग अ ब्राह्मण मिसयूज हिज पावर्स एंड ही कर्स परीक्षित महाराज। जैसे परमहंस ऐसे डिवोटी को कर्स किया, ब्राह्मणिकल पावर का मिसयूज करने की वजह से ब्राह्मणिकल पावर्स कम होनी शुरू हुई। इसकी वजह से डिग्रेडेशन आना शुरू हुआ ब्राह्मणिज्म के अंदर, जहां पर कि पीपल वर सीन एज ब्राह्मण बाय बर्थ नॉट बाय क्वालिटीज। और फिर ऐसे लोग थे जो कि क्वालिटीज तो है नहीं लेकिन वैसे ब्राह्मण है, जिन्हें उसने पहना हुआ है आई एम ब्राह्मण। और फिर ऐसे लोगों ने फिर ये भी किया, ऊंची जाति नीची जाति, ए तू मंदिर में नहीं आ सकता, यू आर फ्रॉम लोअर कास्ट, यू कांट एंटर द टेंपल। और ऐसे उन्होंने कईयों को फिर मंदिर भी नहीं आने दिया, ऊंची जाति नीचे, बिकॉज दे आर नॉट रियली ब्राह्मण्स बाय क्वालिटीज, बाय बर्थ। चतुर्वेदी हैं जिन्हें 4 वेद नहीं पढ़े हुए, त्रिवेदी साहब ने 3 वेद नहीं पढ़े, द्विवेदी साहब ने 2 वेद नहीं पढ़े। तो ऐसे लोग जो है वो फिर ब्राह्मण्स काउंट होने शुरू हो गए कलयुग के प्रभाव के अंदर। इसलिए फिर ना, फिर जब बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो ऑलरेडी यार मतलब देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाँ, मैक्स मुलर जैसे लोग आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक्चुअली मैक्स मुलर जब इंडिया में आया था ना, उसको लगा यहाँ पर ना सब बड़े संस्कृत स्कॉलर होंगे, शास्त्रों में बड़े डूबे हुए लोग होंगे यहाँ पर। तो ही वेंट टू वाराणसी, ही लर्न संस्कृत एंड ऑल दैट, ये सब करना शुरू किया उसने। पर लेकिन उसने किसी से बात करना शुरू किया, वो तो टपोरी है एकदम, कुछ नहीं है अंदर, कुछ है ही नहीं इनके। ही थॉट कि संस्कृत जान करके, संस्कृत में डिबेट करके इनको कन्वर्ट करेगा इन हिज ओन रिलीजन। उसने देखा ये तो कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं है, ये तो ब्राह्मण ने नेम ओनली है। और ये ऊपर, अब ऊपर मानते हैं, ये नीचे जाति वाले, अरे ये तो बहुत बढ़िया, अब देखो हम क्या खेल खेलते हैं। उसके बाद फिर उसने खेल खेलना शुरू किया, खुल्लम खुल्ला उसने आकर के यहाँ पर कल्चर का अगेंस्ट खेलना शुरू किया। तो इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर को ट्रेनिंग ही नहीं थी उस तरह से, ब्राह्मण्स वर देयर इन नेम ओनली। और उसके बाद फिर उसको सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट कर दिया, फिर तो सियापा हो ही गया जी। फिर मीडिया आ गया, फिर और इसको हाईलाइट करना भी शुरू कर दिया। सम पीपल वर रियली ऑप्रेस्ड बाय दीस काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर उसने फिर वो मनुस्मृति भी ले गया, मनुस्मृति को उसने फिर उसको मैनिपुलेट भी कर दिया, फिर वो हो गई मैकॉले स्मृति बेसिकली। मनुस्मृति बेचारी कहाँ गई वो पता नहीं आज, लेकिन आज जो लोग पढ़ते हैं मनुस्मृति के नाम पे वो मैकॉले स्मृति है। ये बी आर अम्बेडकर ने जो जलाई थी ना, इट वाज एक्चुअली मैकॉले स्मृति। उनको लगा था वो ये है मनुस्मृति, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये वुमेन का इंसल्ट, जला दी थी। पर एक्चुअली उनको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो मनुस्मृति थी नहीं, वो मैकॉले स्मृति थी, पूरी तरह से इंटरपोलेटेड। तो इसीलिए फिर वो इंटरपोलेटिव वर्जन ऑफ द स्क्रिप्चर्स अब ये फैलने शुरू, बिकॉज पब्लिकेशन हाउस अच्छे हैं इनके, जिनके जिनके पास ऑथेंटिक नॉलेज है उनके पब्लिकेशन हाउस बड़े कमजोर, नकली नॉलेज वालों के पब्लिकेशन हाउस बड़े बहुत बढ़िया जी। तो वो नॉलेज फैल गई और लोगों ने कहा अरे लॉर्ड, फिर लोगों ने बोला देखो देखो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है ब्राह्मण ऊंचा शूद्र नीचे, ये देखो ये हो तुम्हारा कल्चर। अच्छा, फिर इन्होंने फिर अपने में कन्वर्ट किया, पता लगा वहां पर भी ऊंची कास्ट नीची कास्ट वहां भी चलती थी हालांकि लेकिन वैसे जैसे आपने बोला, कास्ट सिस्टम इज नॉट एक्चुअली हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है। एवरीवन इज डूइंग देयर ओन ड्यूटी, दैट्स इट। लाइक देयर इज priestly class or educators class, administrators class, mercantile class and executioners class और पूरी दुनिया में executors class, exist that's it। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में भी है, है। ये करेक्ट। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, सब जगह पर है, रशिया में भी सब जगह पर है। अच्छा, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हे कास्ट सिस्टम। अच्छा, इसको रुको रुको रुको, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, एजुकेटर्स क्लास and there is administrators class and there is mercantile class, business class and there is executors class। हाँ, ये सही है, अच्छा बोला, अच्छा नाइस नाइस। अच्छा, इसको हिंदी में बोलता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ओह नो कास्ट सिस्टम। अच्छा, इंग्लिश में बोलो देन इट इज ओके, हिंदी बोलो तो कास्ट सिस्टम, क्या यार तुम भी भाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं
पुअर ब्राह्मणिकल कल्चर भी था, और साथ साथ में फिर ऐसे इंडोलॉजिस्ट भी आए इंडिया, इन्होंने मैनिपुलेट भी किया, इन्होंने मिला करके सारा एंटी ब्राह्मण कल्चर उसको फैला दिया. बट यस, नाउ आई वी सी बिकॉज ऑफ इस्कॉन एंड सम ऑफ द ग्रेट सेंट्स इन दिस वर्ल्ड, उनकी वजह से नाउ ब्राह्मणिकल कल्चर, रियल ब्राह्मणिकल कल्चर, वो फिर से रिसर्फेस भी हो रहा है. बिकॉज ब्राह्मण का काम है सबको शिक्षा देना, क्षत्रिय काम है सबकी रक्षा करना, बिजनेस क्लास का काम है सबको लक्ष्मी जहां भी आवश्यकता है, संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, देना. शूद्र का मतलब है सबकी सेवा करना. तो सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं एक्चुअली. दैट इज दी वर्ण कल्चर. तो उसमें हायर कास्ट लोअर कास्ट का कुछ क्वेश्चन ही नहीं था. देयर वाज नो नथिंग लाइक दैट. पर ऐसी एजुकेशन कहीं मिली नहीं, दब गई, इंटरपोलेट हो गई, उसकी वजह से स्यापे हो गए सारे. एक्चुअली मैक्स मिलर कभी भारत आया ही नहीं था. ओ कभी या कॉल है, सॉरी. मकौले भारत कभी आया नहीं था मैक्स मिलर, यस क्योंकि यस. उसको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था आने के लिए. और हाँ. और उसकी उसकी जो सारी शिक्षाएं आई थी भारत में, वो रामकृष्ण मठ की वजह से आई थी. लेकिन वो या कभी आया नहीं था पर्सनली. या. अच्छा, इसमें एक अलग पॉइंट आपने, बहुत आप इतने सारे पॉइंट्स एक में छोटे से आंसर में बोल देते हैं. सो नाउ द ये जो हर्बर्ट होप राइट्सली करके एक व्यक्ति था, Okay. आपने एक वीडियो में बताया था और मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है. हर्बर्ट होप राइसली में 1901 में लोगों के नाक की चौड़ाई देख के, लंबाई देख के उसने बताया कि कौन सा अपर कास्ट है, कौन सा लोअर कास्ट है. और और भाई साहब. तो हर्बर्ट होप राइसली का वो कार्य था 1901 में भारत में कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम. कास्ट और क्लास का एक ही मतलब होता है यूरोपियन लैंग्वेज में. Okay. वो उसने इंस्टीट्यूट किया. अच्छा. और उसने मैक्स म्यूलर की जो थ्योरी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको भारत में स्थापित किया हर्बर्ट होप राइसली ने. लेकिन ओ. आज भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी निश्चलानंद जी का, जो गोवर्धन मठ से हैं, और भी चिन्नजीयर स्वामी जी हैं जो रामानुजाचार्य और रामभद्राचार्य जी हैं. इन सब ने इसका खंडन बहुत अच्छी तरह किया है इस्कॉन के बाहर. बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया है और पढ़ाया भी है बहुत अच्छी तरह, और विद रेफरेंसेस. लेकिन या. आप एक बात देखिए कि यहाँ पर जो 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 हिंदुओं को जो डिवाइड करने की जो स्ट्रेटेजी है, ब्राह्मणों को पहले खत्म करो, ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस खत्म करो. बॉलीवुड ने तो उसको बहुत अच्छी तरह उसको यूज किया है पिछले 70 साल. या. बिल्कुल. और लेकिन ये जो सिस्टम है पूरा, इसकी वजह से बाकी जो वर्ण है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर कोई मिडिल क्लास बोलेगा तो शूद्र हुआ मिडिल क्लास, मिडिल हाँ. कोई वही हुआ, मिडिल क्लास ही शूद्र हुआ. फिर उसके बाद जो आदिवासी भाषा है, जैसे मैं अभी पिछले साल में अमरकंटक में रहा था, मैं आदिवासियों के साथ, और एक दिन ही रहा था मैं. लेकिन जो मैंने उनका कल्चर देखा, इट वाज सो नेचुरल टुवर्ड्स द, विद इंटरट्वाइंड विद द नेचर. अच्छा. कि उनका नर्मदा माँ जो है, रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर इतनी श्रद्धा उनकी, और साथ में वो देवी की पूजा करते हैं, हर जगह नर्मदा दी की पूजा करते हैं. और इट वॉज मोर साइंटिफिक देन मोस्ट ऑफ द पीपल वी फॉलो इन द. हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ रहे नहीं अभी तक. और हम्म. मैं कॉन्ट्रास्ट बोलता हूँ, मैं मापुचे ट्राइब के साथ भी रहा चिले में. अच्छा. जो वाह. वो दोनों भी, उनका भी मैंने जब कस्टम देखा सिमिलर टू इंडियन, सिमिलर कुछ ही. और बड़ा लोगों का आश्चर्य होगा, मपुचे ट्राइब इन चिले चैंट्स ओम अच्छा. 3.5 syllable, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको दिया हुआ है. हम्म. तो ये जो आदिवासी, मुझे को ऐसा लगता है कभी कभी कि आदिवासी जो नेचुरल लाइफस्टाइल में लोग रह रहे हैं, दे आर मोर कनेक्टेड टू सनातन धर्म देन मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन बिकॉज दे आर फॉलोइंग द ट्रेडिशंस. तो हाँ. लेकिन जब यही लोग शहरों में आते हैं, विच इज अगेन ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग फोर्ट्स एंड कॉलोनीज, वहां हम्म. पे आके अर्बन पावर्टी जब आप देखते हैं, तब आपको तब आपको आश्चर्य होता है कि किस तरह ह्यूमन भी रह सकता है आज अर्बन पावर्टी. सो डू यू थिंक दैट द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनातन धर्म और वर्णाश्रम इज क्रिएटिंग मोर अर्बन पावर्टी देन बिफोर? क्योंकि आप कभी देखेंगे नहीं भगवान राम जॉब रिपोर्ट्स दे रहे हैं, कभी आप देखेंगे युधिष्ठिर जॉब रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन आज सभी लोग देते हैं. So where do you think the society has gone wrong in terms of priorities? या. एक्चुअली प्रायोरिटीज जो है जितना ज्यादा बॉडी पे बेस्ड हो जाएंगी ना,
उतना ज्यादा priorities गलत हो जाएंगे. इसलिए आज हम देखते हैं जितनी भी priorities हैं, they are more based on body, bodily comforts, bodily enjoyment, bodily embellishment, bodily show up, bodily. Even English में बोलते हैं, is everybody there? Is anybody there? Somebody, anybody, everybody, body. Nobody talks about soul. तो इसलिए कहीं ना कहीं हमने soul, which is reservoir of emotions, क्योंकि हमने वहां पर क्वालिटी को डाइल्यूट कर दिया, इसीलिए हम देखते हैं that priorities have become topsy turvy. तो जिसको प्रायोरिटी देनी थी उसको प्रायोरिटी दी नहीं, जहां प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी और यहाँ कम देनी चाहिए थी वहां पर भर भर के हमने प्रायोरिटी दे दी. तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मैनेजमेंट करने में हम लोग इतने सफल नहीं रहे. और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी नहीं थे जो कि हमें बताते कि एक्चुअली प्रायोरिटी किसको कितनी कहाँ देनी है. सो ये लैक ऑफ एजुकेशन, सो इग्नोरेंस इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. तो वो प्रायोरिटी में भी आती है कि किसको हमें कितना महत्व देना चाहिए. एक थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट. ओके. इंडिया का जो इंडिया का पोजीशन है अमेरिका में, इट इज कंसिडर्ड, इंडिया इज बिकमिंग ए थ्रेट अमेरिकन पॉलिटिशियंस के लिए. कि अभी ओके. उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा. अभी उनको लगता है कि एक समय में आके अभी चाइना हमारे से ऊपर निकला, अब इंडिया ऊपर ओके. निकलने वाला है. ओके. लेकिन इंडिया द वे इट इज ग्रोइंग, ऐसा बोलते हैं कि अगले 20 साल में इंडिया विल बी मोर इकोनॉमिकली रिचर देन अमेरिका. या. एंड अगले 20 साल में. और डू यू थिंक कि ये जो ट्रेंड है, जो रिवर्स ट्रेंड शुरू होगा? जैसे अमेरिका में अगर आप देखें पॉपुलेशन का, 60% ऑफ अमेरिका आइडेंटिफाइज टू बी स्पिरिचुअल, नॉट क्रिश्चियन. और ये 60% ओह. स्टेटिस्टिक्स है. और 85% ऑफ अमेरिकन्स हैव टेस्टेड योगा इन वन वे और द अदर. या. तो योगा इज बिकमिंग द न्यू कल्चर इन अमेरिका. तो डू यू थिंक कि ये जो योगा कॉन्शियसनेस कैन ब्रिंग ए चेंज इन द वर्ल्ड? आपने पहले ही बताया कि इट कैन ब्रिंग ए चेंज, बट डू यू थिंक दैट द इंडिया कैन राइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योगा? यस, एब्सोल्युटली. एक्चुअली ना जितना ज्यादा हमें लगता है कि ना जितना हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे, सो उतना ज्यादा हम वी विल राइज. बट एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड. सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट naturally follows when there is when people are happy. सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पीछे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप आती है. जैसे इंडिया वाज नोन एज सोने की चिड़िया. सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? बिकॉज यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में थी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वो अपने आप वुड कम नेचुरली व्हेन पीपल आर हैप्पी. सो दे आर नेचुरली प्रोडक्टिव. अदरवाइज दे आर ओनली रिप्रोडक्टिव, बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, क्योंकि दुखियारी आत्मा है. इनफैक्ट हमने देखा है कि ऐसी जगह पर जहां पर मटीरियलिज्म इज ऑन राइज, इवन मटीरियल हैप्पीनेस भी ठीक से लोग नहीं कर पाते. मतलब बच्चे ही नहीं हो रहे. ऐसे कई हम देखते हैं कई लोग हैं वो मटेरियली वेरी वेल अकम्प्लिश्ड, पर जीवन में कुछ सुख ही नहीं है, सूखे सूखे से हैं. सो इंडिया के साथ अब जो अच्छी चीज हो रही है इज दैट द लीडर इज वेरी गुड. लाइक इन कॉर्पोरेट्स वी से द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप. Similarly, nectar also flows from the top. So currently nectar is coming from the top. So economic development भला क्यों होगी इंडिया की, and how India is going to rise? Firstly, एक तो इंडिया is world's guru. इंडिया का काम ना कभी कोलोनाइज करना नहीं रहा कि हम यहाँ कोलोनाइज कर लें वहां कोलोनाइज कर, ना 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 ना. आर्बिट्रेटर रहेगा, ओम्बर्ड्समैन रहेगा, गुरु रहेगा, एजुकेटर रहेगा. जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुई, सो फॉर रिकंसिलेशन विच कंट्री वाज चोजन? चाइना? नो. अमेरिका? नो. अमेरिका को बताइए ये था कि इट इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका. बैटल फील्ड बिकेम यूक्रेन एक्चुअली. लेकिन रिकंसिलेशन के लिए किसके पास जाएंगे? एंड रिकंसिलेशन के लिए इंडिया वाज कंसिडर्ड. सो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो वैल्यू सिस्टम है इंडिया का, ये इंडिया को आगे लेकर जाएगा. बिकॉज पीपल सी कि सर गाइडेंस, जैसे अभी यूरोप के अंदर आग लगी हुई है क्योंकि हमने लोग लेकर के आए चीप लेबर के तौर पे. अब उन्होंने ऐसा चीपड़ा काम किया वहां पर, वो इनकी ऐसी तैसी कर दी. यूरोप इज बर्निंग. तो क्यों? अरे कोई फ्लाइट में लेकर गया, इनसे हम नीचे वाले काम कराएंगे, झाड़ू पोछे लगवाएंगे, हम नमस्ती में रहेंगे जी. इन लोगों ने आप तुम्हारी बैंड बजा दिया, आप संभालो अब. सो फाइनली नाउ दे आर कॉन्टेक्टिंग इंडिया. सम ऑफ द लीडर्स दे कॉन्टेक्टिंग योगी आदित्यनाथ इन इंडिया. क्या सर आपने वहां यूपी में बड़ा अच्छा संभाला सब कुछ, ये यहाँ बताइए हमारा यूपी नहीं हो रखा है, यहाँ अप के बजाय डाउन हो रखा है. यूपी मीन्स अप और हमारा DOWN हो रखा है. व्हाट टू डू? So they are taking guidance from India how to tackle these kind of crisis situations. जैसे कोविड में आप देखिए, कोविड में the best player was India. ना सिर्फ इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीन लगाए, पूरी दुनिया को 150 करोड़ वैक्सीन दिए इंडिया ने. वाओ. मतलब
कोवैक्सिन कोवैक्सिन इकोनॉमिकल भी है, इफेक्टिव भी है। और क्राइसिस के समय में मेडिकल सिस्टम हाउ इट कैन कोलैप्स इन सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, तुमने देख लिया, लोग मर लेगा था भाई, नहीं है हमारे यहाँ लोग, अरे बिस्तरे बिछाए, ये इनके पकारें, लोगों के इलाज हुए, वैक्सीन भी लगी, वैक्सीन दुनिया में गई भी। दैट इज व्हाट इंडिया डिड। तो हालांकि इंडिया को बोलते हैं लोग डेवलपिंग कंट्री, और अच्छा वो डेवलप्ड कंट्री। अच्छा सर कोविड में तो सारा एक्सपोज हो गया कौन कितना डेवलप्ड है, माय गॉड। अरे क्राइसिस आएगा तो हम हैंडल नहीं कर सकते यार, बताओ। सो दे आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का जो किंगली नेचर है विल नॉट कम लाइक अ कोलोनाइजर ऑप्रेसर, इट विल कम लाइक अ गुरु, इट विल कम लाइक अ टीचर, इट विल कम लाइक एन आर्बिट्रेटर, ओम्बड्समैन पर्सन, जो कि लोगों को सिखाएगा, अरे सुधर जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या, रिसोर्सेज नहीं है, अकाल पड़ गया तुम्हारे यहाँ पर, चलो अनाज हम देते हैं तुमको, ठीक है, इतना क्विंटल दे दे तुमको अनाज, थैंक यू। सो इंडिया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, टर्की है, टर्की इंडिया की निंदा करता है, पर उसी टर्की में जब भूकंप आया तो इंडिया ने वहां पर मेडिकल एड भी भेजी, डॉक्टर्स भी भेजे, मेडिसिन भेजी, अनाज ही भेजा। उस अनाज को जिसे बोलता था वो, हो सकता है ये अनाज जो इंडिया से आया है इसमें कोविड हुआ तो इंडिया ने कहा तू हमें दे दे वापस, कोविड है ना इसको वापस दे। इजिप्ट ने कहा नहीं नहीं इट्स ओके, आप हमें दे दो, हमें दे दो। कहा, चल ठीक है तुम ले लो। फिर टर्की ने बोला नहीं नहीं वो हमको चाहिए था, शट अप। तो इंडिया डांट भी लगाने में उस्ताद है, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे मैंने देखा सम ऑफ दी क्वेश्चनर्स फ्रॉम यूरोपियन प्रेस, दे क्वेश्चन आवर जयशंकर जी, मतलब जयशंकर मतलब क्या, मतलब फिदाओं में उस बंदे पे क्या आंसर, वाह। एक्चुअली हम्बलनेस, सब लोग हम्बलनेस को ना नहीं समझ पाते, उनको लगता है हम्बलनेस वीक है इसलिए हम्बल है। सर हमारे विदेश मंत्री बताएंगे आपको, हाँ। सो इसलिए डांट भी लगा लेता है, यूरोप को डांट लगाने के लिए भाई यू नीड अ स्ट्रेचर, और तो इंडिया के पास वो ऑलरेडी है। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आने वाले समय में इट विल बिकम दी बेस्ट इकोनॉमी अगेन। इकोनॉमी का बात क्या करेंगे हम, दादागिरी वी आर दी बेस्ट मैन, नहीं, इस इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की सेवा करता है इंडिया, दैट इज इंडिया। सो इसलिए इंडिया इज रियली एन ऑसम कंट्री, जो उसका कल्चर है, जो वैल्यू सिस्टम जो रन करता है इसकी वजह इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए दुनिया में निश्चित रूप से इंडिया इज गोइंग टू रूल, बट एज अ फादर, एज अ गुरु, नॉट एज एन ऑपरेसर, डिक्टेटर, नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट द, मतलब वो इंडिया के डीएनए में ही नहीं है। सो इसलिए होल वर्ल्ड विल बेनिफिट if India becomes a world leader. Like currently, our Narendra Modi ji is not just Indian leader; he is world leader, and we need such leaders actually. So आगे जाके फिर योगी आदित्यनाथ भी हैं, फिर वो तो 2.0 खेलने वाले, so वो भी जरूरी है। तो इसलिए now dharma is going to prevail all across the globe. First time we'll have a prime minister of India who is in saffron. Wow, that's nice. हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी होने वाला है, बट यस, सो भगवतधारी आगे जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया के, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। इसमें ऐसा नहीं कि मुसलमान क्रिश्चियन है उनको हम बरमूडा ट्रायंगल भेज देंगे, तुम लोग जाओ, अब ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं होने वाला। सबको साथ रखेंगे, बदमाशी करोगे ना बेटा तो भोग पिटोगे तुम, चुपचाप अच्छे से रहो, तुम्हें सब देंगे हम, अस्पताल भी देंगे, रोड भी देंगे, सब देंगे, हाँ ठीक है ना। बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, हाँ, डोंट बी अ कंप्लेन बॉय एंड कंप्लेन गर्ल, कंप्लेन करते रहना बस हमेशा, सो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है, समझ गए ना, हाँ। So India is going to be like that kind of leader in the future. Sometimes I pity some of these people क्योंकि Muslims are safest in India. They are हाँ prospering the most in India. actually, Even in Muslim countries, Muslims are not safe. और मैं चाहता हाँ हूँ कि पहले पाकिस्तान का घर वापसी हो, पाकिस्तान बिकम्स हिंदू राष्ट्र, तो ये लोग भी थोड़ा चुप हो जाएंगे। बिकॉज yeah, मैक्सिमम अपोजिशन टू इंडिया इज डन बाय द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स, yeah, that's मैक्सिमम। true. भारत के That's अंदर true. ज्यादा ही होता है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे। बट चेंजिंग द टॉपिक हियर, आपने, हाँ सो ऑल हिंदूज आर वरीड कि हमारे सनातन कहाँ पे हैं साधु, क्यों नहीं गए नूह में, कहाँ पे हमारे हाँ साधु। हाँ जबकि इस जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं, 1 रुपए भी नहीं देते हैं डोनेशन किसी भी हाँ साधु। मतलब इंडियन साधु इज द ओनली साधु विच इज लिटरली डिपेंडेंट ऑन जगन्नाथ, nobody हाँ else. absolutely. सनातन धर्म इज द ओनली वन विच डिपेंडेंट ऑन जगन्नाथ डायरेक्टली। बाकी सब Yeah. जगह गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट फंड्स क्रिश्चियन ग्रुप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड्स हिंदू दे क्रिश्चियन प्रीचर्स, प्रोटेस्टेंट्स को वो फंड करते हैं, अमेरिका फंड करता है प्रोटेस्टर्स को। कैथोलिक्स हैव देयर ओन स्टेट वेटिकन, जिसमें पूरा Wow. साउथ अमेरिका का टैक्स उनके पास ही पहुंचता है। Wow. देयर एनुअल इनकम इज ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $400 billion।
वो उनका एनुअल है। सनातन धर्म एकमात्र है जहाँ के लोग रिच हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मणों के पास पैसा नहीं है। और फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, नोबडी इज टीचिंग, एंड वी डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज टू प्रचार विच आर नॉट डिजाइन टू प्रचार। यूनिवर्सिटीज आर डिजाइन टू कॉलोनाइज यू फर्दर। या तो ये जो हिंदू बिजनेसमैन है, जो हिंदू कम्युनिटी है, अनलेस दे इन्वेस्ट इन देयर ओन फ्यूचर, हाउ विल दे सिक्योर देयर फ्यूचर? ये मेरा क्वेश्चन भी है। तो किस तरह ये लोग पार्टिसिपेट करें आपके साथ और अन्य साधुओं के साथ? बहुत सारे साधु हैं भारत में। कौन लोग, आई एम सॉरी, पार्टिसिपेट करें कौन बिजनेसमैन, लोग? बिजनेसमैन, 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 हिंदू बिजनेसमैन, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट? क्योंकि दे हैव टू आल्सो पार्टिसिपेट। अगर कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, यू आर हाँ या अर्निंग मनी, तो अर्थ से धर्म की सेवा होती है। अनलेस यू फंड आवर ओन ग्रुप्स, हाउ विल यू यस प्रोटेक्ट योर ओन कल्चर? क्योंकि ब्राह्मण ही प्रोटेक्ट करने वाला है, और कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। यस 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 यस, बिल्कुल। एक्चुअली ना, आप देखिए, सनातन के साथ थोड़ी ट्रेजेडी क्या है, बाकी जगह पर बाकी धर्म जो है, दे आर सपोर्टेड बाय लीडर्स, पॉलिटिकल पावर्स, वो उनको सपोर्ट करती हैं। इंडिया के अंदर थोड़ा उल्टा है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स दी टेम्पल्स, और जो दान आता भी है वो उसको अपने पास ले लेती हैं, और इससे फिर मिशनरी को खिलाती है, क्या तुम लोग अब एंटी हिंदू काम करो, यहाँ दान आएगा, इसको लेंगे हम, वहां देंगे। कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं ऐसे जहां पर ये लोग दान देते हैं, और कितना पार्ट वो इट गोज टू मिशनरीज हु फीड पीपल एंटी हिंदुइज्म। अरे ऐसे नहीं कि मिशनरीज इंडिया के अंदर हैं वो लोगों को बाइबल पढ़ाते हैं कि आओ तुमको बाइबल पढ़ाएं, आओ तुमको हम कुरान पढ़ाएं, ना 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 ना। दे टीच पीपल एंटी हिंदू आइडियोलॉजी। ये देखो तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, कमी एक, कमी दो, कमी तीन, कमी चार, क्या है तुम्हारे में? कुछ नहीं है। जो आइडल वर्शिपर्स, आइडोलेटर्स, हाँ, स्टैचू वर्शिपर्स, डॉल वर्शिपर्स, ये एजुकेशन का पार्ट है। वाह, क्या बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म जो है वो उतना हो जाता है, बिकॉज जो लक्ष्मी आती भी है वो भी स्टेट कंट्रोल कर लेती है उसको। दूसरा, बाकी क्या है, जो बिजनेसमैन है ना, मैं देखा है बिजनेसमैन दान देने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड वो ना किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को देख ले। एक हिंदू के साथ क्या थोड़ा ये भी रहा है कि ना, हिंदू हैज नॉट बीन वेरी प्रीची, हम प्रचार करना चाहिए, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जिसको स्वीकार करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे। अब इस चक्कर में क्या हुआ, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग वेरी प्रीची, तो ना बिजनेसमैन की श्रद्धा है नहीं, कहता बस ये पोंगे पंडित हैं मंदिर में बैठे हुए हैं, टन 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 करते हैं, बस दैट्स इट। इसीलिए ना फिर ये लोग इतना दान वगैरह करते नहीं, बिजनेसमैन को धर्म के लिए दान करना भी होता था। पर कहीं ना आप देखो, पर व्हेन साधु गिव्स स्पिरिचुअल एजुकेशन, और बिजनेसमैन को लगता है दम है भाई, अरे वो जी भर भर के लक्ष्मी देगा। अब जैसे इस्कॉन के अंदर पीपल गिव लक्ष्मी, वाई? उनको पता है यार यहाँ पैसे का मिसयूज नहीं है, यहाँ पर लोग पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, एंड दे आर एजुकेटर्स। ये पुंगा पंडित भी नहीं है, घंटा बजाए, आ जा बेटा तिलक लगाओ, आ जीता रहे बेटा, एग्जाम में पास हो जा, आ। ये काम इस्कॉन के अंदर नहीं है। स्पिरिचुअल एजुकेटर्स मिलते हैं हमें इस्कॉन के अंदर, तो इसलिए लोग देखते भी है इस्कॉन, एंड पीपल आल्सो गिव डोनेशंस। तो इसलिए आप देखिए पूरे ऑल अक्रॉस द ग्लोब इस्कॉन टेम्पल्स आर रनिंग सक्सेसफुली। व्हाई? बिकॉज वी आर एजुकेटिंग पीपल इन स्पिरिचुअल साइंसेस, लॉजिकली, सेंसिबली, कल्चरली। सो इसलिए जब वो करते हैं यूजिंग ऑल मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वी आर डूइंग दैट। सो ऐसे में ना साधु भी विश्वास आता है बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन दान करता भी है। इससे आप देखिए कितने ही साधु हैं, दे हैव गॉट एम्पल ऑफ मनी। अफकोर्स कुछ उसमें कुछ साधु नहीं भी हैं, उन्हें इवन देन दे गेट मनी। तो जो साधु हैं दे आल्सो गेट मनी, बिकॉज पीपल सी अरे जेन्युइन साधु। तो इससे कहीं ना कहीं साधु को एक अच्छा उदाहरण बनना पड़ेगा, एंड दे आर टू बिकम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वेरी एक्टिव। सोशल मीडिया पे उनको आना चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए। देंगे तो बिजनेसमैन दिखेगा इसको, तो अरे सीखा, हमारा जीवन बदला, हमारे जीवन की टेंशन कम हुई, वाह। लाइक आई रिमेंबर वन वन बिजनेसमैन, ही केम टू मी, ही सेड कि प्रभु जी मैंने ना आपका लेक्चर सुना, हाउ टू कंट्रोल एंगर। वो इतना प्रैक्टिकल लगा, उस लेक्चर को मैंने 50% अप्लाई किया है, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हो गए। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि ना स्पिरिचुअल एजुकेशन के बाद बिजनेसमैन वुड गिव लक्ष्मी। नाउ एवरी मंथ दिस पर्सन गिव्स 50,000 रुपीज एज अ डोनेशन। या प्रभु जी मंदिर के लिए है, इस्कॉन द्वारका के लिए, मना मत करिएगा, बस 50,000 रुपए दे रहा हूँ, बस हर महीने वो 50,000 रुपए देता हूँ। सुपर हुआ कैसे? पर क्योंकि वन साधु गिव स्पिरिचुअल एजुकेशन टू समबडी, टू बिजनेसमैन, दैट्स इट। इस तरह से लक्ष्मी आएगी अपने आप, और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम चलता है। जो साधुस हैं, ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थीस एंड सन्यासीज गिव स्पिरिचुअल एजुकेशन टू गृहस्थास। गृहस्थास फील एनलाइटेंड, और फिर ये इनको लक्ष्मी देते हैं इनकी बॉडीली मेंटेनेंस के लिए। इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
and society progresses very nicely. तो ऐसा होगा, वाह बहुत बढ़िया जी। भारत में 1 लाख ऐसे मंदिर हैं जो पुरातन है, और उस पे नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। और इतना अपॉर्चुनिटी हाँ, है, मतलब 1 लाख पुजारियों को तो राइट अपॉर्चुनिटी हो गया कि क्योंकि हाँ, पुजारी भी एक सेवा है। इट्स नॉट, इट्स ऑल्सो ए सेवा, इट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन ऑल्सो। कि या, कोई उसको करना चाहे, जैसे आप बता रहे हैं कि एजुकेशन दें, क्योंकि हम्म, ये जो प्रिंसिपल अमोघ लीला प्रभु बता रहे हैं, इट कैन बी अप्लाइड टू एनीबडी, एनी टेम्पल, एनी कम्युनिटी, इंडिविजुअल टेम्पल्स ऑल्सो। हर गांव में एक मंदिर है, हर गांव में प्रचार हो सकता है। हम्म, एक अगेन तो आप सब लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर आप गीता को बताएं, जैसे गीता में भगवान ने बोला है, उन्हीं शब्दों को रिपीट भी करें तो अच्छा है। एंड देन यू कैन बिकम ए, डू द रोल ऑफ ए ब्राह्मण। yes, why और not? परफेक्शन की जरूरत नहीं है हर जगह, क्योंकि परफेक्शन तो बहुत लंबे समय से आता है, तो साधक का Yeah, वो जीवन रहता है। एक क्वेश्चन आता है टॉपिक से थोड़ा सा और हटके, क्योंकि जी, मेरे को पता नहीं आप नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। नहीं नहीं, ठीक अरे है। आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, बीच मैनेज करेंगे हम लोग, आ जाएंगे, हो जाएगा, और कैसे कुछ नहीं है। सनातन धर्म में नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि सबको पढ़ भी सकता है, मेरी पुस्तक में भी है और महाभारत में लोग पढ़ सकते हैं, जी, बिना सेनाओं के सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता। ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि सेनाओं के सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता। लेकिन यस, अगर हम तो अपनी सेनाओं को देखते हैं, एक सेक्युलर, सेक्युलर मतलब नास्तिकवाद, पागलपन। या, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नास्तिक को यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर को नास्तिक कौन है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं मूर्ख। क्योंकि जो व्यक्ति चल रहा है वो युधिष्ठिर के शब्द है, हाँ, हमारे शब्द नहीं है। लेकिन लेकिन जो सेनाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार होता है, तो जब अर्जुन उत्तरी दिशा की तरफ जाता है, तो जहां जहां भी जाता है वहां सेना एकत्रित करता रहता है और छोड़ता भी रहता हम्म, है। तो जिसलिए सारे हम्म, मंदिर हम देखते हैं रशिया में और हर जगह, वो सब महाभारत कालीन मंदिर है, सारे या, द्वापर युग के मंदिर है। हाँ तो जी, ये जो कॉन्सेप्ट है सेनाओं के द्वारा, लेकिन हम देखते हैं जैसे अमेरिका है, छोटी छोटी बात पे हर जगह जाके आक्रमण कर देता है गलत चीजों के लिए। जैसे या, आर्थिक, जैसे अभी नाइजीरिया में अटैक होने का प्लानिंग हो रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं कि यूरेनियम की वजह से अटैक होगा। या, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लिथियम इज द न्यू गोल्ड, तो लिथियम हाँ, की वजह से अटैक होगा, आक्रमण होंगे। लेकिन भारत का जो स्ट्रक्चर है, सनातन धर्म का स्ट्रक्चर है, जो कि एकमात्र सनातन धर्म की वैल्यूज विच इज नॉन एक्सप्लॉइटेटिव, ओनली एक नॉन हाँ, एक्सप्लॉइटेटिव वैल्यूज है सनातन धर्म, क्योंकि वी आर यस, डूइंग फॉर धर्म। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये भारतीय मिलिट्री लीडर्स के अंदर नहीं आई है कि हम्म, वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर प्रेजेंस सो दैट हम्म, सनातन धर्म कैन बी प्रोटेक्टेड। सनातन धर्म आज भी एग्जिस्ट करता है हर सोसाइटी में। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, शमन दें, मंगोलिया के शमन लें, तुर्की के शमन लें, पगान लें, यूरोप के, ईस्टर्न यूरोपियन के, वो सभी इसी को फॉलो करें, कल्चर सेम है। तो या, why, how this consciousness or how this training can be given to the military leaders also, or people who plan military also, कि it is also intrinsically part of Sanatan Dharma, it is meant to protect Sanatan Dharma. या, ऐसे क्षत्रिय भी हुआ करता था, क्षत मीन्स टू किल, त्रायते मीन्स टू प्रोटेक्ट। तो क्षत्रिय का एक्चुअली कंप्लीट रोल यही है कि प्रोटेक्ट भी करना, और जहां पर हिंसा की आवश्यकता है धर्म की रक्षा हेतु, वहां पर हिंसा भी करना। सो इसीलिए इंडिया के साथ क्या है, इंडिया चलता है, अपनी आर्मी को भी लेके चलता है एज पर दी आइडियोलॉजी विच वी कैरी। और हमारी आइडियोलॉजी को कॉलोनाइज करने की है ही नहीं। इसलिए इवन दो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी इंडिया की है, एक्चुअली वैसे टोटल आर्मी जो है वो चाइना की सबसे बड़ी है, लेकिन एक्टिव आर्मी अगर हम देखेंगे ना, तो 18 लाख सोल्जर्स हैं इंडिया की आर्मी में, इन कंपैरिजन टू चाइनीज एक्टिव आर्मी, इसमें करीब 15 लाख सोल्जर्स हैं। तो 3 लाख हमारे यहाँ पर एक्टिव सोल्जर्स ज्यादा है। टोटल आर्मी उनकी 21 की है, लेकिन एक्टिव कम है उनके। तो इसलिए एक्चुअली देखा जाए एक्टिव आर्मी इंडिया की सबसे बड़ी, लेकिन क्योंकि कॉलोनाइजेशन हमारा मूड ही नहीं है, हमारे आइडियोलॉजी का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हम लोग अभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर कोई अटैक करेगा ना, तो फिर हाँ, लाइक समबडी वाज टेलिंग मी कि ना मोदी जी इज नाउ इवन एंगेजिंग आर्मी इन टेकिंग केयर ऑफ दीज मिसक्रिएंट्स, जो कि आड़े टेढ़े काम करते रहते हैं ना बड़े बड़े लेवल पे, राइट, ऑन द नेम ऑफ माई आइडियोलॉजी आई कैन एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और आज से हमारी है जी, ठीक है जी, और दूसरे धर्म की लड़कियों को कन्वर्ट करना अपने में। सो इसीलिए दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें ना आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होना अच्छा रहता है, कि ओके भैया हम बॉर्डर पे क्या करेंगे, दुश्मन तो भाई आपके आड़े टेढ़े लोग तो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए उनको ठीक करने के लिए
वी नीड आर्मी। तो इसलिए आर्मी वो काम भी करती है, पुलिस भी लगी हुई है, नो डाउट इसमें, पुलिस इज आल्सो डूइंग फैबुलस वर्क, साथ साथ में आर्मी भी लगी हुई है। तो इसीलिए आर्मी को सिर्फ बॉर्डर के बाहर नहीं, बॉर्डर के अंदर भी जो आड़े टेढ़े लोग हैं उनको ठीक करना जरूरी है, पूरे नेशन को डिटॉक्स करना, फिर वो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको सेट करना जरूरी है। ये वायरस अगर दूर नहीं होंगे ना तो गड़बड़। तो इसलिए आर्मी का काम है एंटी वायरस का काम करना, यानी जितने वायरस लोग हैं ना उनको चुन चुन करके अच्छे से ठिकाने लगाना, उनको भेज देना जहां वो जाने की इच्छा रखते हैं। सो सो दैट मीन्स आर्मी हैज गॉट अ ग्रेट रोल एंड आई मस्ट से आवर आर्मी इज सुपर्ब। एक जो बड़ी खूबसूरत चीज है इंडियन आर्मी के अंदर, ईच एंड एवरी सोल्जर इज रिस्पेक्टेड सो ब्यूटीफुली। अगर कोई व्यक्ति मरता है, कोई आर्मी सोल्जर, उसको इतना सम्मान दिया जाता है। एज चाइनीज सोल्जर के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट ये भी थी, कहता उनका बंदा मरता है ना, वो लोग भाई उस पे पूरा अपना तिरंगा लगा करके उसको ताबूत में रख करके उसको रिस्पेक्ट के साथ उसको बाय बाय करते हैं। और हमारे यहाँ पर बंदा मर गया कहता है भाई इनको ऐसा करो, इनको एसिड डालो, इनको पिघलाओ, इनकी बॉडियां खत्म करो, है ना, ये इज्जत है हम लोगों की। सो आई सॉ सम वीडियोस जिसमें कि इवन चाइनीज सोल्जर रो रहे हैं अरे हमारे साथ ये होने वाला है, ले उनका देखो, इंडिया का देखो, इंडिया में सो मच रिस्पेक्ट फॉर देयर आर्मी, और हमारी आर्मी मतलब रजड़ बना के रख देते हैं वो लोग। सो रोते हैं वो, बट दे एडमायर दिस ऑल्सो कि इंडिया में आर्मी की कितनी रिस्पेक्ट है। ऑल्दो उस पे फॉल्स एलिगेशंस भी लगी हैं फ्रॉम सम अदर पार्टीज इन इंडिया, बट येट दे आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क एंड हैट्स ऑफ टू देम। इस हमारे मोदी जी हर दीपावली पे जाते हैं और वो टाइम स्पेंड करते हैं इन सोल्जर्स के साथ, दैट व्हाट यू आर डूइंग इज ऑसम। वो सियाचिन में आप लोग वहां पर अपनी हड्डियां आप गलाते हो, हम लोग यहाँ सुरक्षित रहते हैं इंडिया के अंदर, पर आप लोगों का वो सेक्रीफाइस है। तो इसलिए व्हाट यू आर डूइंग इज रियली प्रेज वर्दी। सो इसलिए होली, सॉरी अपना दीपावली पे और सम अदर ओकेशंस एज वेल, our leaders like नरेंद्र मोदी जी, he spends time with them, उनके साथ लड्डू खाएंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे कि आप अपने परिवार से दूर हो, दीपावली आप नहीं मना पा रहे हो, पर मैं आपका परिवार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरह की लीडरशिप लेके चलेंगे ना अगर आर्मी को, अरे आर्मी विल रिमेन मोटिवेटेड, अरे सर आप बता दो क्या करने का, आप उन लोग अब सब संभाल लेंगे सो certainly army has got a great role and they are doing it pretty good now. नो बट द इंडियन स्टेट जो है, भारत जो है, अपने सोल्जर्स का केयर अमेरिका से भी ज्यादा करता है। इन Oh yes, अमेरिका yes. वेटरन्स जो है, 16 वेटरन्स कमिट सुसाइड Oh, एवरी डे फॉर लैक ऑफ मेडिकल केयर। और एक बार कोई आर्मी में चला गया, लोग पता नहीं किस तरह के ड्रग्स देते हैं अमेरिकन सोल्जर्स को कि वो अच्छा। उनका मेंटल स्टेट बिगड़ जाता है, सो दे कैन नेवर फंक्शन नॉर्मली। तो सुइसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, और ये सब मेडिसिन की वजह से है। और तो Sad. इसलिए पीपल हु क्वेश्चन इंडियन आर्मी, मैं आपको ये फैक्ट्स हैं, आप गूगल पे हम्म। सर्च कर सकते हैं। आई मे बी लिटिल रॉन्ग इन द परसेंटेजेस, 13.8 to 16, कल ही मैं सुन रहा था कहीं कहीं पर। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि द वेटरन मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट इशू इन नॉर्थ अमेरिका। और अच्छा। जो सोल्जर्स रिटायर करके आते हैं, और तो दिस इज गोइंग ऑन। तो पीपल शुड, अगर किसी को फैक्ट्स मालूम नहीं है तो गूगल पे भी आजकल सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो मतलब लोग बोलते हैं कि राष्ट्र से धर्म होता है, जबकि उल्टा प्रिंसिपल है, धर्म से राष्ट्र बनता है। और धर्म का Yes. मतलब रिलीजन नहीं होता। तो दोनों, तीनों को अलग कर दिए, तो धर्म इज डिफरेंट थिंग। तो अमोल जी, वन लास्ट क्वेश्चन कि Okay. you have touched upon very motivating talks for everybody, for everything, and people must be getting inspired. मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं इधर। सो दी वन लास्ट क्वेश्चन इज कि when the society starts giving, आपको ऐसा कब लगता है कि भारत की जो सोसाइटी है अपनी प्रायोरिटीज को सही कब करेगी? Priorities in the sense? कि ब्राह्मणिकल कल्चर को बचाना, और हाँ। बच्चों को गिव देम द फ्रीडम टू बिकम गुड सोल्जर्स, गुड टीचर्स, सनातन धर्म के लिए। अदर या थिंग्स आर आल्सो देयर। या पर्टिकुलरली अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, यूथ को ना दो चीज चाहिए होती हैं। पहला, उनके क्वेश्चंस के लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स मिल जाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, दे वांट गुड रोल मॉडल्स। अगर हम ये दो चीजें यूथ को दे देते हैं ना, यूथ विल सेल देमसेल्व्स। सर आप बताइए जो करना है हम करेंगे, अच्छा सोल्जर बनना है, अच्छा जो बनना है, अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट बनना है, हम बनेंगे। पर से दो चीजें कर दीजिए हमारे साथ। एक, लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन बैंक है जी, वी आर वॉकिंग क्वेश्चन बैंक्स। बस एक वो कर दीजिए। सेकंड, अच्छे रोल मॉडल्स दे दीजिए, बस that's it। इन दो की कमी की वजह से हमारा यूथ भटक गया है। तो इसीलिए वी कैन कम बैक टू आवर कल्चर एंड द प्रायोरिटी कैन बी चेंज।
provided we change individually the mindsets. अब हमारे पास बहुत powerful medium वो है social media. Social media has given each and every individual the power to give knowledge. पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था भाई, अब इनके पास ये जो ज्ञान देंगे आपको रिसीव करना है, यू हैव टू बी एट रिसीवर्स एंड. पर सोशल मीडिया ने एक आम व्यक्ति को भी शक्ति दी है कि आप जो नॉलेज देना चाहें दे सकते हैं. एंड नाउ वी सी दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर मोर इन्फ्लुएंसिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कौन देखता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कुछ नहीं. 2014 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाज अगेंस्ट मोदी जी, पर सोशल मीडिया वाज प्रो मोदी जी. 2014 में क्या हुआ इलेक्शंस में हम सब जानते हैं. सो सोशल मीडिया इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. तो इससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अब फिर से हम वी कैन रीच दैट प्रायोरिटीज बाय राइट काइंड ऑफ एजुकेशन. एवरीवन हैज अ पावर टू गिव राइट काइंड ऑफ नॉलेज. उसको लेकर के आए, नॉट जस्ट वन चैनल, मैनी चैनल्स कैन बी देयर. तो एक चाहे वो आदित्य हो या एक अमोघ लीलादास, सारे सर मैनी मैनी आदित्यास एंड मैनी मैनी अमोघ लीलादास आर रिक्वायर्ड नाउ so that right kind of knowledge, so that right kind of priorities can be set in the minds of the people. So it's in the due course of time, it will happen. It is already happening. It will happen even further. So this is how I see things are changing in the right direction. Yeah. So this is Amogh Leela Prabhu for everyone, and he came on our channel, and after, and it will be released, and you'll see him. तो आप इस पे कमेंट करिए, लोगों को बताइए. और अमोघ लीला जी ने जैसा बताया कि किस तरह पेरेंट्स को, यूथ को, दे हैव टू गेट एजुकेटेड और सही सोर्सेज ऑफ एजुकेशन से. सो एक कहावत होती है इंग्लिश में, पेज बाय पेज बी ए सेज. तो पढ़िए गीता को, और इंच बाय इंच इज ए सेंच. थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए हरि नाम के द्वारा, या फिर पुस्तकें पढ़िए. मेरी बहुत सारी पुस्तकें हैं और बाकी संतों की बहुत सारी पुस्तकें हैं, और वहां पे जाके पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, एंड ट्रस्ट ऑन योर ओन जजमेंट, है ना. सो दैट कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो यू विल बी इंस्पायर्ड टू रीड मोर. Thank you so much, Amogh Leela Prabhu, for coming on the show for the first Thank time. you, Aditya, for calling me. And really happy to hear you. And आपका enthusiasm देख के I am getting goosebumps. Namaste Thank you. and thank you. Thank you so much. Hare Krishna.